चुनाव का साल है, एक ही साल चुनाव में बचा है, कुछ ही महीने बचे हैं ऐसे कहा जा सकता है और ऐसे में वडोदरा के विकास को तेजी दे दी गई है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा अलग अलग विकास कार्यों को शुभारंभ किया जा रहा है। उन्हीं में से कुछ विकास कार्यों का आज भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया है, जिसमें फायर स्टेशन का लोकार्पण, आर्ट गैलरी का लोकार्पण और अलग अलग सारे जो विकास कार्य है उसका शुभारंभ हुआ है। રૂપિયા 331 કરોડના ખર્ચે થવા જઈ રહ્યા છે વડોદરા મહાનગરપાલિકાના કુલ 61 પ્રકલ્પોના ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ, જેમાં રૂપિયા 295 કરોડના 46 પ્રકલ્પોના ખાતમુહૂર્ત અને રૂપિયા 35 કરોડના 15 પ્રકલ્પોના લોકાર્પણ સામેલ છે। આ લોકાભિમુખ કામોમાં સામેલ છે રૂપિયા 5 કરોડ 80 લાખના ખર્ચે બિલ્ડિંગ પ્રોજેક્ટ દ્વારા બદામડી બાગ ખાતે નવીન તૈયાર થયેલ ફાયર સ્ટેશન તથા નવીન આર્ટ ગેલેરીનું લોકાર્પણ, તેમજ રૂપિયા 39,86,000ના ખર્ચે દીપક ઓપન એર થિયેટરનો વિકાસ કરીને નવીન તૈયાર થયેલ અતિથિ ગૃહનું લોકાર્પણ, તેમજ 1 કરોડ 12 લાખના ખર્ચે બાપોદ ખાતે નવીન તૈયાર થયેલ અત્યાધુનિક સુવિધાઓ સભર અર્બન પ્રાઇમરી હેલ્થ સેન્ટરનું લોકાર્પણ, રૂપિયા 3 કરોડ 40 લાખના ખર્ચે ઉર્મી સ્કૂલ 4 રસ્તાથી હરણી ટાંકી સુધીના નવીન 600 મિલીમીટર ડાયામીટરની એચએસ ફીડર નળિકા નાખવાના કામનું લોકાર્પણ, રૂપિયા 6 કરોડ 48 લાખના ખર્ચે પાણી ગેટ શાક માર્કેટ થી ઝાલા કમ્પાઉન્ડ એપીએસ સુધી ટ્રેન્ચલેસ પદ્ધતિથી તૈયાર થયેલ ડ્રેનેજ લાઇનનું તેમજ તરસાલી ટીપી 38 ખાતે નવીન ડ્રેનેજ નેટવર્કનું લોકાર્પણ, રૂપિયા 5 કરોડ 26 લાખના ખર્ચે ઉંડેરા ગોત્રી ખાતે નવીન આરસીસી વરસાદી ચેનલ, ગોત્રી હોસ્પિટલ સાઈ મંદિર પાસે નવીન વરસાદી ચેનલ તેમજ કુતરાવાડી કલવર્ટથી મહાદેવનગર સુધી નવીન તૈયાર થયેલ વરસાદી ચેનલનું લોકાર્પણ, મિકેનિકલ શાખા દ્વારા રૂપિયા 4 કરોડ 47 લાખના ખર્ચે ખરીદેલ કુલ 10 નંગ ગાર્બેજ કોમ્પેક્ટર મશીન તેમજ રૂપિયા 1 કરોડ 91 લાખના ખર્ચે નવીન ખરીદેલ 3 પેવર ફિનિશર મશીનનું લોકાર્પણ, રૂપિયા 4 કરોડ 60 લાખના ખર્ચે સયાજી બાગમાં ફૂડ સ્ટોરેજ બિલ્ડિંગ, વુલ્ફ જેકલ, હાયના ક્વોરન્ટાઇલ કેજીસ, મેમલ કેજ ઓફ ડિસ્પ્લે, બર્ડ બ્રીડિંગ કેજીસ જેવી સુવિધાઓનું લોકાર્પણ, પાર્ક્સ એન્ડ ગાર્ડન વિભાગ દ્વારા મોટી બાપોદ તળાવ ખાતે રૂપિયા 95 લાખના ખર્ચે તૈયાર થયેલ નવીન ઓક્સિજન પાર્ક, રૂપિયા 41 લાખના ખર્ચે વારસિયા ખાતે મિયાવાકી ગાર્ડનનું તેમજ રૂપિયા 39 લાખના ખર્ચે TP3 ફાઇનલ પ્લોટ 585 ખાતે નવીન બગીચાનું લોકાર્પણ। આ ઉપરાંત આજે વિકાસના કુલ 46 નવીન પ્રકલ્પોના ખાતમુહૂર્ત પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેમાં સામેલ છે નવીન રસ્તાઓ, ફૂટપાથ અને રસ્તાઓ પહોળા કરવાના રૂપિયા 76 કરોડ 35 લાખના ખર્ચે રોડના કુલ 18 પ્રોજેક્ટ્સ, રૂપિયા 65 કરોડ 81 લાખના ખર્ચે સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ વિભાગના કુલ 3 પ્રોજેક્ટ્સ, રૂપિયા 64 કરોડ 51 લાખના ખર્ચે પાણી પુરવઠાના કુલ 14 પ્રોજેક્ટ્સ, રૂપિયા 53 કરોડ 53 લાખના ખર્ચે બિલ્ડિંગ વિભાગના કુલ 4 પ્રોજેક્ટ્સ, રૂપિયા 14 કરોડ 79 લાખના ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટના 3 પ્રોજેક્ટ્સ, રૂપિયા 20.33 કરોડના ખર્ચે વરસાદી ગટર નાખવાના 4 પ્રોજેક્ટ્સ। વડોદરા विकासनी नवी दिशा। वडोदरा के फायर ब्रिगेड को कुछ और नए संसाधन मिलने जा रहे हैं। आप देखिए बदामड़ी बाग में अत्याधुनिक फायर स्टेशन और साथ ही स्वामी विवेकानंद आर्ट गैलरी तैयार की गई है और वडोदरा महानगर पालिका के फायर ब्रिगेड विभाग को कुछ और व्हीकल्स की भेंट मिल रही है। जो संसाधन है वो भेंट स्वरूप दिए गए हैं। वडोदरा के नागरिकों को वडोदरा महानगर पालिका द्वारा कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है। वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी हमारे साथ है। सर, वडोदरा को सुविधाएं देने की कोशिश वडोदरा महानगर पालिका की ओर से क्या कहेंगे? वडोदरा के अंदर आगामी दिनों में फिर वो वडोदरा का ब्यूटिफिकेशन हो, वडोदरा की जो मूल जरूरियात हो या वडोदरा को विकास के नई ऊंचाइयों तक ले जाने के प्रकल्प हो, वह सारे प्रकल्प और जो माननीय वड़ा प्रधान श्री बोलते हैं विकास भी विरासत भी, वैसे हमारे विरासत को भी संवारने के प्रकल्प जैसे ऐसे 331 करोड़ से भी ज्यादा कार्यों के आज खातमुहूर्त और लोकार्पण का कार्यक्रम किया गया है और उसमें सब ने साथ में मिलकर विकसित वडोदरा से विकसित भारत बनाने के लिए सबके बीच में बात रखी है। गुजरात के वडोदरा शहर में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा 331 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है, जिसके तहत वडोदरा के बदामड़ी बाग में फायर स्टेशन
और साथ ही एक आर्ट गैलरी का लोकार्पण किया जा रहा है, जिससे वडोदरा शहर को सुचारू फायर सुविधा मिलेगी और साथ ही वडोदरा के आर्टिस्ट को एक गैलरी की भी भेंट मिल रही है। आज वडोदरा महानगर पालिका द्वारा कुल मिलाकर 331 करोड़ से भी ज़्यादा की कीमत के अलग अलग कार्यक्रम यानी प्रकल्पों की खातमुहूर्त और लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए मैं वडोदरा महानगर पालिका के सभी चुने हुए प्रतिनिधि एवं वहीवटी तंत्र को आभार व्यक्त करता हूं और साथ में हम जहां अभी खड़े हैं ये आर्ट गैलरी जो बड़ौदा की एक पहचान होने जा रही है, तो सभी नागरिकों को भी मैं विनती करता हूं कि ये आर्ट गैलरी में आए ताकि जो भी एग्जीबिशन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म कॉर्पोरेशन ने दिया है वो भी अपने आप में एक अलग है, तो उसके लिए भी कॉर्पोरेशन को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। देर आए पर दुरुस्त आए। वडोदरा के आर्टिस्ट पिछले कई सालों से वडोदरा शहर कला नगरी में कला को बढ़ावा देने के लिए आर्ट गैलरी की मांग कर रहे थे, जो सालों बाद आखिरकार बदामड़ी बाग में बनकर तैयार है और आज इसका शुभारंभ कर दिया गया है, जिससे कला नगरी में कला को बढ़ावा मिलेगा। इस आर्ट गैलरी के निर्माण को लेकर कई तरह के विवाद हुए, लेकिन आखिरकार आर्टिस्ट को थोड़ा बहुत साथ रखकर थोड़ा बहुत अपने तरीके से वडोदरा महानगर पालिका ने इस आर्ट गैलरी को तैयार कर ही दिया है और आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि वडोदरा के आर्टिस्ट जो है आर्ट गैलरी का किस तरह इस्तेमाल कर कला नगरी को विश्व फलक पर आगे ले जाते हैं। चलिए, वडोदरा आर्टिस्ट परिवार के फाउंडर पुलकित दवे हमारे साथ हैं और आखिरकार आर्ट गैलरी सालों बाद आर्टिस्ट को मिली है, वडोदरा शहर के कलाकारों को मिली है। कितनी खुशी है। आखिरकार बहुत सालों की आपकी लंबी लड़ाई के बाद आप लोगों को एक आर्ट गैलरी आज भेंट मिली है, क्या कहेंगे? बड़े खुशी की बात है। बड़ौदा शहर में 2018 में तोड़ी गई थी आर्ट गैलरी विनोद राव जी के समय में, उस टाइम पे वो म्युनिसिपल कमिश्नर थे और बड़े आनंद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज 2025 में दिलीप राणा जी ने हमें आर्ट गैलरी दी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र पटेल, एक्स एमएलए सीमा मोहिले मैडम, दिलीप राणा सर म्युनिसिपल कमिश्नर अभी के और शीतल मिस्त्री के सहयोग से ये आर्ट गैलरी मिली है। आने वाले दिनों में बड़ौदा में जितने भी कला रसिकों है वो देख सकेंगे, बाहर के कलाकारों भी एग्जिबिट कर सकेंगे। बड़ौदा कला नगरी है तो जाहिर सी बात है कि एवरी आर्टिस्ट हैज एन इंट्यूजन कि भाई मैं कहीं ना कहीं मैं एग्जिबिट कर सकूं, और ये एक आर्ट गैलरी ऐसी है कि गुजरात के सेकंड नंबर पे आती है ऐसी आर्ट गैलरी और इतना सारा एम्बियंस स्मार्ट आर्ट गैलरी का प्रोविजन दिया गया है। तो कला नगरी के वती और वडोदरा आर्टिस्ट परिवार का फाउंडर होने के नाते मैं ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, दो चीज़ ऐसी है कि लिफ्ट और आने वाली एंट्रेंस के लिए कॉरपोरेशन अभी विद इन शॉर्ट टाइम कुछ करने वाली है, तो वो इट्स इन प्रोसेस और आई एम थैंकफुल टू वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये पूरा एग्जीबिशन वडोदरा के 29 आर्ट फोटोग्राफरों ने वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को डेडिकेट किया है। थैंक्स अ लॉट। पार्किंग की एक दिक्कत थी, क्या वो सॉल्व की गई है? दिक्कतें थी, वो जो भी स्टेज पे आया तभी उन्होंने सॉल्व करके दी हमने, और दिसंबर से लेके फरवरी तक मैं फाइनल स्टेज जब भी आर्ट गैलरी का हुआ तो मैं इनके साथ टच में था। वैसे तो 2018 से लेके 2025 तक जहाँ जहाँ पे मुख्यमंत्री कार्यालय हो या कोई भी जगह पे निवेदन की प्रक्रिया भी थी, उसमें मैं कंप्लेनेंट था और मैं मेरे खुद के एक्सपेंस से मैं लड़ा हूँ, और आज मुझे गर्व होता है कि मैं कुछ ना कुछ बड़ौदा शहर के लिए इतनी छोटी उम्र में कुछ दे पाया हूँ। इससे मुझे गर्व होता है और आनंद की बात यह है कि बड़ौदा शहर के जितने भी आर्ट फोटोग्राफर है उनका आर्ट एग्जिबिट हो के मैं पुलकित हो रहा हूँ। यही पुलकित दवे की इच्छा है। थैंक यू। वडोदरा में लंबे अरसे से एक सिटी के अंदर फायर स्टेशन बनाने की मांग की जा रही थी,
दंडे बाजार का फायर स्टेशन टूटने के बाद अब यहाँ एक फायर स्टेशन बनाया गया है और साथ ही आर्ट गैलरी की भेंट वडोदरा कला नगरी वडोदरा को मिली है। ऐसे में ये दोनों सुविधाएं वडोदरा शहर के लोगों को काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। मैंने पहले ही कहा इलेक्शन का साल है और इलेक्शन के साल में वडोदरा के नागरिकों का दिल जीतने की पूरी कवायद वडोदरा महानगर पालिका द्वारा शुरू कर दी गई है और उसी के तहत विकास कार्यों को तेजी से संपन्न किया जा रहा है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का वीएनआम टीवी के लिए।